Dear students, today I will discuss with you about parts of speech, and it's very important in English grammar, and without this topic a grammar is incomplete, which we cannot think actually. Okay, so today about parts of speech we'll learn. So what is these parts of speech actually? The words in English language are divided into 8 parts according to the function they perform. These are called parts of speech. Mind it, words in English language are divided into 8 parts. Okay, so grammar के बारे में बात कर रहा है। जो लैंग्वेज 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, एंड दे आर नोन टू बी द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या फंक्शन है इन लोगों का? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। What is sentence? How many kinds of sentences are there? I have already explained to you. Now, first one is noun, second pronoun, third verb, fourth adverb, fifth adjective, sixth conjunction, seventh preposition, eighth interjection. So these 8 parts in details with proper definition and example के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे आज। देखो, फर्स्ट वन इज नाउन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। अ नाउन इज अ वर्ड used to name a person, place, animal or thing, and also something which can only be thought of but can't be seen. इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो देयर आर बेसिकली 5 नाउन्स आर देयर: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हम लोग जब जस्ट सोच सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, देख नहीं पाते हैं, वी कांट सी इट। नेताजी वॉज अ ग्रेट लीडर। सो यहाँ पे देखो, नेताजी इज ऑल्सो नाउन, लीडर इज ऑल्सो अ नाउन, लेकिन ये जो 2 नाउन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, 2 अलग अलग नाउन है। नेताजी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है एंड लीडर कॉमन नाउन है। ओके, but you have to write down in the comment box why Netaji is proper noun and leader is common noun. You write down in the comment box. I want to see. Okay, next one we will see. Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. There are different kinds of pronouns. Just like nouns, pronouns also have number and gender. So regarding number and gender also I have uploaded videos previously. You just watch. Now here you see, I met Mother Teresa when she visited our school. तो यहाँ पे I भी pronoun है, she is also pronoun. Okay. A pronoun is used in the place of noun. तो यहाँ पे she visited our school. she कौन है? she Mother Teresa है। तो repetition of the same word means Mother Teresa will be repeated again. So Mother Teresa is used as noun and she is used as pronoun. Next one, verb. What is verb? A verb is a word that expresses an action. So what are the, like, walk, eat, sleep, or state of being, such as is, am, are, was, were, and it is the most important part of speech as there can be no sentence without a verb. Therefore dear students, verb एक बहुत ही important part है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि verb के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं।
इसलिए वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. एग्जाम्पल, द फार्मर प्लक्ड द एप्पल्स एंड प्लेस्ड देम इन अ कार्ट. तो यहाँ पे प्लक्ड भी वर्ब है एंड प्लेस्ड भी वर्ब है. नंबर 4, एडवर्ब. व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb क्या करते हैं? Adverb meaning add करते हैं. किसके साथ? Verb, adverb और another adverb के साथ. Example, she arranged the flowers quickly. तो यहाँ पे quickly क्या है? Quickly adverb है. तो बहुत जल्दी वो flowers arranged किए थे. Okay. Fifth, adjective. What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun. There are different types of adjectives that tell us more about nouns. Okay, now you see adjective का काम क्या है? Adjective that describe about the noun. Noun को modify करते हैं, noun को qualify करते हैं और noun को add करते हैं extra meaning. क्या है? The kingfisher इज अ कलरफुल बर्ड. तो देखो कलरफुल यहाँ पे एक्चुअली एडजेक्टिव है. किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको ऐड दे रहा है मीनिंग? ने बर्ड को दे रहा है. वो कलरफुल बर्ड है. ओके, नेक्स्ट वन यू सी 6, कंजंक्शन. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. तो कंजंक्शन क्या करते हैं? कोई भी वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. एग्जाम्पल, सीता एंड गीता आर ट्विन्स. देखो सीता एंड गीता को जोड़ रहा है कंजंक्शन. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है ना? कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज, ये सब एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन है. नेक्स्ट नंबर 7, प्रीपोजिशन. व्हाट इज एन प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन रिलेशन टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंस. तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? वो पोजीशन बताते हैं. नाउन और प्रोनाउन कहाँ पे है वो पोजीशन बता देते हैं. एग्जाम्पल देखो, जॉनी केप्ट द ब्रूम अंडर द कपबोर्ड. तो ब्रूम कहाँ पे रखा ना? अंडर द कपबोर्ड. ओके, तो यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है ना? अंडर. द कैट इज ऑन द टेबल. द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल. ऑन मतलब कैट कहाँ पे है ना? ऑन द टेबल, सो रहा है. ओके, लास्ट वन इज अबाउट इंटरजेक्शन. व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन और अ सडन फीलिंग. तो अगर कोई सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या होता है? इंटरजेक्शन. एग्जाम्पल, हुर्रे द प्रेसिडेंट हैज जस्ट डिक्लेयर्ड टुमारो अ हॉलीडे. तो यहाँ पे हुर्रे क्या है? हुर्रे एक्चुअली इंटरजेक्शन है. ये एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स, इमोशंस. ओके, तो क्या होता है? इंटरजेक्शन के बारे में होता है एक्चुअली. ओके, नाउ we'll see an exercise and we'll discuss about it. Now you see, here is a list of words. Write them down under the appropriate heading. ठीक है, तो लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या वर्ड है? ब्यूटीफुल, अंडर, अनीता, लिटिल, ओवर, अलास, बट, ओ, वी, देम, इज, वेरी, क्विकली, बिकॉज, ओवर, बिकॉज, गिव. तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. टोटल 8. ओके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो यहाँ पे देख लेते हैं. नाउन क्या है? नाउन अनीता है. प्रोनाउन वी, देम. एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल, लिटिल. प्रीपोजिशन क्या है? ओवर, अंडर. वर्ब क्या है? इज, गेव. ना गेव एक्चुअली गेव का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? गिव. एडवर्ब क्विकली, वेरी. कंजंक्शन बट, बिकॉज. एंड इंटरजेक्शन अलास, ओ. तो इस तरफ का भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पेपर में. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ that's all about. I hope you have learned and continue to learn because learning is very important.
And these all total 8 parts of speech are very important in English grammar. Without this, it's really a baseless. It's we don't think of this. So I suggest you go through this very properly. In your book also it is written. Okay. And also I suggest you that you watch the videos properly. Yeah? Both noun, pronoun, it is all adjective, preposition, very, adverb, conjunction, interjection are all uploaded in the channel. So you go through that, continue to learn. नाउन का डिवीजन क्या है, कितना प्रकार है, हाउ मेनी काइंड्स एग्जाम्पल के साथ, प्रोनाउन काइंड्स एग्जाम्पल के साथ, एडजेक्टिव काइंड्स एग्जाम्पल के साथ, सब ग्रुप में दिया गया है. Just you have to pay more attention to it. So stay tuned and continue to learn. Okay. Thank you.